हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विद्याभूषण तिवारी फ्रॉम मेधावी इंस्टीट्यूट। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टीज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। नाउ उसी कंसेप्ट को लेते हुए हम लोग कुछ और क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म एग्जाम। ठीक है, सो आवर पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, दैट इज 3 to the power 3x minus 1 divided by 9 equal to 27. And your question is what? Find x. Find x. So first of all यहाँ आपको ये देखना होगा कि that इस क्वेश्चन में हम लोग कौन कौन से प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं, बिकॉज पहले हम बोल चुके हैं दैट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दैट वीडियो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, सो नाउ यहां हम लोग क्या करने वाले हैं दैट हियर वी सी दैट ऑल क्वेश्चंस या और यू कैन से दैट ऑल numbers is in the form of 3 to the power base. Okay, so you can see that or you start this question, this 9 you can see that what, that is 3 to the power 2 is equal to 27, you can say that 3 to the power 3. So here we see that what बच्चों, that दोनों का बेस क्या हो गया 3 in terms of divide, so you can say that 3x minus 1 and for divide it should be minus. I told you in terms of divide we subtract the power is equal to 3 to the power 3. After that बच्चों that is 3x both are negative, so add the number and put negative sign, so it should be 3 minus 1 minus 2 minus 3 is equal to 3 to the power 3. So now base are same, so power also equal, so you can say that 3x minus 3 is equal to 3 since base are equal. Okay बच्चों, so now our aim is what, to find the value of x, so you can say that 3x is equal to any negative value coming this side positive, so 3 plus 3. After that 3x is equal to 3 plus 3 6, so what is the value of x, any multiply come in this side it is divide, so this is the final answer. So I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि दैट यहाँ हम लोगों को सॉल्व कैसे करना है, यहाँ हम लोगों को सॉल्व कैसे करना है बच्चों, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द क्वेश्चन एज अ प्रॉपर वे and then we try to understand which property is suitable for this question. After understand that part, then you are able to understand or solve this question, otherwise you are in trouble. That आपको अगर प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगा तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को रटने की कोशिश करोगे which is not good, because now board pattern is changed. Now क्वेश्चन का लेवल जो है little bit टफ आ रहा है, तो इट मींस व्हाट, डेफिनेटली ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ एनी चैप्टर्स इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं सो दैट आपका ये कांसेप्ट अच्छे से हो जाए। सो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इट इज सिंप्लीफाई। एंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, दैट इज x to the power a upon x to the power b whole to the power
a plus b multiply x to the power b upon x to the power c whole to the power b plus c multiply x to the power c upon x to the power a whole to the power c plus a. So first of all इस क्वेश्चन को देखने के बाद we see that here base are same. यहाँ पे देख लो आप लोग base same है, यहाँ भी base same है, यहाँ भी base same है. So first of all we use the property number 2 that base same in terms of divide. We can say that x to the power a minus b और यहाँ हमारे पास क्या है a plus b. अब ये कैसे आया बच्चों? यहाँ हमारे पास base same था और ये divide के टर्म में है बच्चों. Don't be confused. In terms of multiply अगर रहेगा so we add the power, but here it is in terms of divide, so it means we subtract the power और a plus b as it is. After that x to the power again same concept, so it should be b minus c to the power b plus c, and then x to the power c minus a to the power c plus e. Now apart from that इसके अलावा क्या करना है? We know that a minus b a plus b. See here we use or here we continue chapters exponent, but now we use algebraic formulas also. तो आपको ये ध्यान रखना है that a minus b और a plus b ये क्या होता है बच्चों? a square minus b square. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? That is a square minus b square. जिस तरह से यहाँ a b है, यहाँ b और c है, तो आप यहाँ बोल सकते हो x to the power b square minus c square. उसी तरह यहाँ पे आप बोल सकते हो that is c square minus a square. Now all base are same, so you can say that add the power in terms of multiply. Be careful, यहाँ multiply है तो power को add कर देंगे और यही अगर divide रहेगा बच्चों तो power को subtract कर देंगे. That is a square minus b square plus b square minus c square plus c square minus a square. Be careful. यहाँ मैंने क्या किया? यहाँ मैंने बड़ा प्लस दिया. Why it is? In order to categorize power 1, power 2, power 3. ठीक है ना? Now what we see? This ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. So it is x to the power 0. That is 1. तो इस तरीके से अगर ऐसे क्वेश्चन बुक्स में है तो डेफिनेटली वी यूज प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी की हेल्प से ही हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज प्रॉपर्टी के अलोंग विद वी यूज अलजेब्रिक फॉर्मूला आल्सो. ये भी हमको ध्यान रखना है कि दैट हम लोग 7th क्लास में है, 8th क्लास में है, 9th में है, तो डेफिनेटली आवर अलजेब्रिक पोर्शन शुड बी स्ट्रांग. ठीक है ना? बोथ हमारा जो टॉपिक है ये साथ साथ चलता है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि आपको इफ यू आर इन क्लास, इफ यू आर इन आईसीएसई बोर्ड, तो डेफिनेटली फ्रॉम 5 ऑनवर्ड, 5 से आपका क्लास जो होना, जो आपका मैथ्स होगा वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाना चाहिए. अदरवाइज इन हायर क्लास व्हेन यू गो डेफिनेटली यू आर इन ट्रबल. फिर आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा. सो फ्रॉम आईसीएसई और सीबीएसई आल्सो 5 ऑनवर्ड मैथमेटिक्स शुड बी स्ट्रांग. ठीक है बच्चों? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ. आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ. अब इस पर बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चन आप लोगों का बनता है सो डेफिनेटली यू आस्क एज अ क्वेरी, डेफिनेटली उसका मैं रिप्लाई दूंगा. ठीक है बच्चों? थैंक यू.